بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے عرب کے اندر مسلمانوں کی انٹری اور یہود کی انٹری کب ہوئی اس کو بتلایا تھا۔ پہلے مسلمان آئے مکہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، یعنی مسلمان نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں کی نسل وہیں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے اسی طور پر جو ہے مسلمانوں کی انٹری جو مکہ میں ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد 70 عیسوی کے اندر رومن ٹائٹس، اس کا نام پچھلے ہم نے رومن ٹائسن اس طرح کا لیا تھا نا، اس کا نام ہے اصل میں رومن ٹائٹس۔ 70 عیسوی کے اندر جو ہے قسطنطنیہ سے چل کر یہ ملک شام آیا۔ ملک شام کے اندر یہودیوں کا قبضہ تھا، تو یہاں سے جو ہے یہودیوں کو مار کر اس نے وہاں سے بھگا دیا، اور یروشلم اور جو ہے ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی سب کو توڑ دیا اس نے۔ تو اس وقت جو ہے یہودی ملک شام سے نکل کر مدینے کے اندر آ گئے، خیبر میں اور مدینے کے اندر۔ اور مدینے کا اس وقت نام جو ہے یثرب تھا۔ دوسری انڈی میں عرب کے اندر یہود کی ہوئی 70 عیسوی کے اندر۔ اس کے بعد جو رومن ٹائٹس تھا، اس کا جو ہے پہلے ترکی کے اندر تھے نا، ترکی کے بعد جو ہے ملک شام کے اندر یہود کو بھگا دو، ملک شام کا بھی جو ہے علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ انہیں بتلایا پورا روم ہے یہ، یہاں سے لے کر عراق جو ہے جب لڑائی ہوتی تھی کبھی ایران قبضہ کر لیتا ہے عراق پر، اور کبھی جو عراق پر روم قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ روم اور فارس کی جو لڑائی پہلے چلا کرتی تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ نے جو ہے اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی۔ تو جو ہے روم کا پورا علاقہ جو ہے روم میں ترکی جو اس وقت کا ترکی ہے نا، استنبول جو اس وقت کا اس کا نام جو قسطنطنیہ تھا، اس وقت وہی جو ہے روم کی راجدھانی تھی قسطنطنیہ۔ ملک شام، اردن، اسرائیل، لبنان، مصر، سوڈان، حبشہ، یہاں تک جو ہے روم تھا یہ، اور 3 بر اعظم اس کے اندر آتے تھے۔ یہ علاقہ جو ہے ایشیا کا ہے مصر تک، اور یہ وہ مصر اور جو ہے حبشہ یہ افریقہ کا علاقہ ہے، اور یہ ترکی کا جو علاقہ ہے یہ یوروپ کا علاقہ ہے۔ تو 3 بر اعظم جو ہے روم کے اندر آیا کرتے تھے۔ تو 70 عیسوی کے اندر رومن ٹائٹس نے جو ہے یہودیوں کو یہاں سے جو بھگا دیا، تو یہودی جو ہے عرب کے اندر جو ہے داخل ہو گئے، عرب کے اندر ان کی انٹری ہو گئی 70 عیسوی کے اندر۔ اس کے بعد چل کر 300 عیسوی کے قریب رومن ٹائٹس جو ہے کوئی لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے اندر جو ہے کچھ عیسائی ان کے ساتھ موجود تھے، تو اس نے عیسائیت قبول کر لی ان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ جو ہے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر یا اللہ کا نام لے کر جو ہے آپ لڑیے، آپ کو فتح ہوئی۔ تو اس طرح فتح ہو گئی۔ فتح ہونے کے بعد عیسائیت جو ہے رومن ٹائٹس نے قبول کر لی، اور عیسائیت اس وقت حق مذہب تھا، گویا کہ اس وقت مسلمان عیسائی تھے۔ تو رومن ٹائٹس نے 300 عیسوی کے قریب جو ہے کرسچنی اور جو ہے عیسائیت قبول کر لی۔ جب عیسائیت قبول کر لی، پورا علاقہ جو ہے عیسائی ہو گیا، بادشاہ کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے عیسائی بن گیا۔ پہلے ترکی راجدھانی تھی، ترکی کا علاقہ عیسائی بنا، اس کے بعد شام، اس کے بعد مصر، پھر سوڈان، پھر حبشہ، یہاں تک کہ پورا علاقہ کیا ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اور اس وقت کا حق مذہب بھی جو ہے عیسائی تھا، اسلام جو اس وقت دنیا میں نہیں آیا تھا۔ حبشہ کے بعد جو ہے، کیونکہ حبشہ اور یمن ایک قریب ہی ہیں، اور ہم نے بتلایا یمن جو ہے پہلے عرب کا ہی علاقہ تھا، بعد میں چل کے الگ ملک بن گیا، لیکن عرب کے اندر ہی جو ہے یہ گنا جاتا تھا یمن، اور اصل پہلے یمن ہی عرب تھا۔ مکہ میں تو کوئی بساوٹ نہیں تھی حضرت ابراہیم سے پہلے، تو اس وقت جو عرب تھا وہ اصل میں یمن ہی تھا، یہی بساوٹ تھی۔ یہاں جو ہے سمندر ہے، بحر عرب، عرب ساگر جسے کہا جاتا ہے، اسی کے قریب جو ہے یمن اور عمان، یہ 2 ملک ہیں، یہی بساوٹ تھی عرب کی جو تھی، اور یہ اصل میں عرب میں ہی جو ہے اصل عرب یہی تھا اس وقت۔ تو حبشہ تک عیسائیت پھیلی، اور پھر حبشہ کے بعد جو ہے عیسائیت یمن کے اندر آ گئی، تو یمن کے لوگ بھی جو ہے عیسائی ہو گئے۔ تو تقریباً پھر 40 سال اسی طرح جو چلتا رہا، 40 سال تک جو ہے اسی طرح یمن کے اندر ہم نے لکھا تقریباً 340 تک جو ہے عیسائیت رہی، اس علاقے میں بھی، یہاں بھی، اور یمن کے اندر بھی، ٹھیک۔ اور یہاں جو ہے یہود ہیں، تو کیا ہوا، یہاں یہود ہو گئے مدینے میں، مکہ میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، اور جو ہے پھر وہ کفار مکہ بن کے بعد میں، پھر یہاں جو ہے نیچے عیسائی آ گئے۔ تو عرب کے اندر پھر تینوں کی انٹری اس طرح جو ہے
तकरीबन 340 के आसपास जो है ईसाई फिर अरब के अंदर दाखिल हो गए, अरब के अंदर जो है ईसाई की एंट्री हो गई। उसके बाद हुआ ये कि यमन के अंदर जो है कौम सबा के लोग रहते थे। जो पहले वाक़या पढ़ा हो ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्किस का जो वाक़या था, बिल्किस जो थी वो कौम सबा की मलिका थी। तो कौम सबा के जो है यमन के अंदर लोग रहा करते थे। तो कौम सबा के ही दो आदमी यमन थे, उसका एक बादशाह था। वो बादशाह यमन से जो है मदीना आया, यस्रिब आया इसी काम से। जब यहाँ मदीना आया तो मदीने में जो है यहूद मौजूद थे, तो उनसे मुतासिर हो गया। वो जो बादशाह था यमन का, मुतासिर होने के बाद उसने यहूदियत कबूल कर ली। पूरा इलाका ईसाई हो गया था। ईसाई होने के बाद जो है, हालांकि हक मजहब ईसाई था उस वक्त, लेकिन जब ये मदीना आया तो उसने यहूदियत जो है कबूल कर लिया और यहूदियों से मुतासिर होकर उसने कबूल कर लिया। उसका नाम था अबुल कर्ब, जो यमन का बादशाह था, कौम सबा से ताल्लुक रखता था। तो जब ये यहूदी बन गया तो यहूदियों से कहा कि मुझे दो आलिम अपने साथ दे दे ताकि मैं यमन के अंदर इसकी जो है दावत दूं लोगों को। तो यहाँ से मदीने से दो आलिम लेकर आया यहूदी, ये अबुल कर्ब जो था। यहाँ पर यमन आने के बाद उसने यहूदियत की दावत दी, तो तकरीबन पूरा इलाका जो है यहूदी बन गया। यमन, ये यमन जो मुल्क है यहूदी बन गया। फिर दोबारा यहूदी होने के बाद अबुल कर्ब जो है चलता रहा। कुछ दिन के बाद जो है उसका इंतकाल हो गया अबुल कर्ब का। अबुल कर्ब के इंतकाल के बाद इसका बेटा, अबुल कर्ब का बेटा जू नवास जो है बादशाह बना, यूसुफ जू नवास इसका नाम पूरा था। तो बादशाह बना। वो बादशाह, उसने बादशाह बनने के बाद बड़ी सख्ती करी। सख्ती इस चीज पे करी कि अब हमारे मुल्क में यहूदी के अलावा कोई मजहब नहीं होगा, यहूदियत के अलावा जो है कोई मजहब नहीं होगा, हम हर एक को यहूदी बनना पड़ेगा। उन्हें बड़ी सख्ती के साथ इस चीज को लिया और जो है पूरे मुल्क को, यहूदियत तो पहले फैल चुकी थी, लेकिन जो थोड़े बहुत ईसाई थे भी चंद जगह, उनको भी जो है सख्ती के साथ, अगर उन्होंने यहूदी कबूल नहीं करी जबरदस्ती उनसे भी जो है यहूदियत कबूल करवाई। अब चंद ईसाई बचे, वो छुप कर अपनी बात किया करते थे, वो छुप कर ही जो है दावत दिया करते थे। कई जगह जैसे आज भी होता है मुसलमानों के साथ, कई इलाकों के अंदर मुसलमान जो है छुप छुप कर दावत देते हैं, या जो है अल्लाह के रसूल के जमाने के अंदर मक्का के अंदर इस तरह हुआ करता था। अब इसी तरह चलता रहा मामला। तो यहूदियों में से एक आदमी था, बड़ा जादूगर, काहिन जिसे कहा जाता है, नजूमी भी कहते हैं, है ना, जादूगर भी कहते हैं। तो जब बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि आप मुझे एक लड़का दे दें जिसको मैं अपना इल्म ट्रांसफर कर दूं, उसको सिखला दूं। कोई ज़हीन आदमी, कोई जो है कोई इस तरह का लड़का हो ज़हीन, उसको मैं अपना इल्म जो है अपना जादू सिखला दूंगा। तो बादशाह ने एक बच्चे को मुतय्यन करा और उनको बुलाकर जो है उस जादूगर को दे दिया। उनका नाम हमने लिखा है अब्दुल्ला बिन तामर, उनको उस बच्चे का नाम था। फिलहाल वो जो है उसके बाद जादू सीखने लगा। तो जादू सीखने जब जाता था तो जाते हुए आते हुए एक घर पड़ता था, वो एक ईसाई राहिब का था, यानी एक ईसाई पादरी का घर था वो। तो हम मुलाकात हो गई, तो उसने उस बच्चे को दावत दी। तो बच्चा जो है उस काहिन के बाद जादूगर के पास भी जाता जादू सीखने के लिए, और आते हुए उस राहिब के पास भी आता और ईसाइयत भी सीखता। उसने जो है बिल्कुल गुप्त तरीके से उसने ईसाइयत कबूल कर ली, गोया कि वो मुसलमान हो गया ईसाइयत कबूल करने का, लेकिन उसने किसी को बतलाया नहीं। उस तरह जादू भी सीखता रहा और राहिब से जो है वो ईसाइयत भी सीखता रहा। कुछ दिन बाद हुआ ये कि एक जगह का रास्ता जो है किसी शेर ने या किसी जो है जंगली जानवर ने रास्ता रोक लिया, वहां खड़ा हो गया। तो आने जाने वालों को रास्ता रुक गया, जो भी जाएगा उसको वो जंगली जानवर या शेर वगैरह खा लेंगे, तो रास्ता रुक गया। तो कुछ लोगों ने कहा उस बच्चे से, ये आप जो है जादू सीख रहे हैं, आप इस जानवर को हटाएं। तो उस बच्चे ने जो है पत्थर उठाया और कहा अगर राहिब का दीन हक है तो जो है ये पत्थर मारो, ये मर जाए। ये कहकर जो उसने पत्थर मारा, शेर वगैरह जो था वो मर गया। तो उसका यकीन और ज्यादा जो है मजबूत हो गया। अब उसके बाद उसने जो है जाना शुरू करा, राहिब के पास गया, राहिब को बताया इस तरह। तो राहिब ने कहा भाई अब आपके ऊपर आजमाइश आएंगी जो है, लेकिन आजमाइश आएंगे कोई पूछेगा तो मेरा नाम मत बताना, ठीक है। आप जो बड़े मर्तबे पहुंच गए, भैया आपके से तो गोया क्या करामत जाहिर होने लगी, तो करामत जाहिर होने लगी तो आप बड़े मर्तबे पहुंच गए, तो अब जो है आपके पास जो है आजमाइश अल्लाह की तरफ से आएंगी। तो आजमाइश शायद लोग जो है आपसे पूछें तो आप मेरा नाम जाहिर मत करूंगा। चलो ठीक है, उसने वादा कर लिया। उसके बाद जो है एक आदमी जो बादशाह का करीबी था, जू नवाज बादशाह था ना, उसका एक करीबी था, उसके
आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो है कि आंख से दिखना बंद हो गया। तो एक आदमी ने कहा फला बच्चा है, वो जादूगर है, उसके पास जाइए और वो आपको ठीक कर देगा। वो आदमी गया, जाने के बाद जो है उस बच्चे के बाद उसने अपने उज़्र रखा, भाई मेरी आंखें खराब हो गई, आप सही कर दें। तो उस बच्चे ने, अब्दुल्ला बिन तावान ने तो थे, उन्होंने कहा कि आप जो है इस्लाम कबूल कर लें, गोया कि ईसाइयत जो है वो कबूल कर लें। ठीक करने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक करने वाला कौन है? अल्लाह है ना। आप इस्लामियत कबूल करें, आप जो है कलमा पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे, मैं दुआ मांगूंगा, आप सही हो रहेंगे। तो उसने जो है ईसाइयत कबूल करी, फिर उस बच्चे ने दुआ करी, तो उनकी आंखें क्या हो गई? बिल्कुल सही हो गई। सही होने का वो बादशाह के पास गया, बादशाह ने पूछा क्या बात? तो वही आंखें बिल्कुल सही हो गई। मैंने कहा फला बच्चा है, उसके पास गया, उसने सही कर दी। उसने कभी किस तरह सही करी? तो उसने कहा सही करने वाला मैं नहीं हूँ, सही करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। आप जो है कलमा पढ़ लें, ईसाई बन जाए, तो आपकी जो है आंखें सही हो रहेंगी। और बादशाह गुस्सा आ गया, क्योंकि बादशाह जो है सख्ती पता कि कोई ईसाई बाकी ना रहे, सब यहूदी बन जाए। लेकिन जो बच्चा ईसाइयत की दावत दे रहा है, तो उसने जो है उस जो आदमी था जिसकी आंख खराब हुई थी, उनसे कहा भाई आप फिर दोबारा ईसाई बने, घर वापसी करें, आप है ना, आप जो है यहूदी बन जाए, बल्कि आप क्या बन जाए? यहूदी बन जाए। उसने मना कर दिया, भाई अब जो है मैं यहूदी नहीं बन सकता, मेरे दिल में जो है घर कर गई बात, अब मैं हमेशा के लिए अब ईसाई रहूंगा, जो बरहक मजहब है इस वक्त का, ईसाई रहूंगा। तो उसने जो है आला मंगवाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए उस आदमी के। फिर उस राहिब को बुलाया, बच्चे को बुलाया और राहिब को भी बुलाया, जो पादरी था ईसाई। उससे कहा आप भी जो है ईसाई वो यहूदी बने, उसने मना कर दिया, तो उसके भी जो है 2 टुकड़े कर दिया आरे से। और जो बच्चा था अब्दुल्ला बिन तामर, उनसे कहा कि आप भी जो है घर वापसी करें, को कि आप जो है यहूदी बन जाए। उसने कहा कुछ भी हो जाए हम यहूदी नहीं बन सकते, हम तो हक मजहब पर रहेंगे। तो ज़ू नवाज जो बादशाह था, उसने अब्दुल्ला बिन तामर को जो है चंद अपने बॉडीगार्ड के हवाले करा और कहा इसको पहाड़ के ऊपर ले जाओ, वहां से गिराकर मार देना। वो चंद आदमी जो है अब्दुल्ला बिन तामर को पहाड़ के ऊपर लेकर गए। जाने के बाद उससे कहा आप जो है यहूदियत कबूल कर लें। उस बच्चे ने कहा कि वो यहूदियत जो है कबूल नहीं कर सकता। और उस बच्चे ने कहा अल्लाह का नाम लेकर जो है भाई हर काम मेरा हो रहा है, तो अल्लाह का नाम अब भी मुझे अल्लाह बचाएगा। तो उसको जल्जला आया और जो आदमी थे वो सारे के सारे गिरकर मर गए, और ये आदमी जो है अब्दुल्ला बिन तामर ये बच गए। ये फिर वापस आए, बादशाह को मिले, बादशाह को पता चला, बादशाह ने कहा वो आदमी का है जो मर गए, अगर तुम बच गए? हाँ मैं बच गया, अल्लाह ने बचा लिया। उसको जो इस बात पर और गुस्सा आया, तो उसने अपने और चंद बॉडीगार्ड साथ लगाकर नाव के अंदर उसको बिठाया और कहा पानी के बीचों बीच इसको डालिया ना। वो लेकर गए, पानी के बीचों बीच पहुंचे, तो उसने फिर अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह से दुआ करी बच्चे ने, तो नाव हिली और जो बॉडीगार्ड थे वो भी नाव में से गिरकर पानी के अंदर गिर गए, वो मर गए। और ये बच्चा जो है फिर दोबारा बच गया। जब वापस आया बादशाह को फिर पता चला भाई ये बच्चा बच गया। उन्होंने कहा, फिर बादशाह ने कहा यहूदियत कबूल करो। उन्होंने कहा भाई मैं यहूदियत कबूल जो है नहीं कर सकता। उसने बादशाह ने वो कई तरीके जो है उस बच्चे को मारने के अपनाए। उस बच्चे ने जो है एक तरह की बतलाई, उन्होंने कहा अगर तुम्हें मारना चाहते हो ना, एक ही तरीका है मुझे मारने का, ये क्या है कि मुझे एक मैदान के अंदर ले जाओ और वहां जो है मेरा हाथ पैर बांध दो एक पेड़ से, और मेरे ही तरकश का एक तीर लो और उस पर मेरे अल्लाह का नाम, देखो बिस्मी रब्बी अल्लाह के जो है इस बच्चे के रब के नाम से हम जो तीर मारते हैं वो मेरे तीर मारो, जब मैं मरूंगा। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, भैया मैं तो आपको मारना ही है। तो उस बच्चे को जो है एक मैदान के अंदर ले गए और लोगों को जमा करा। लोगों को इसलिए जमा करा भाई हम जो भी ईसाइयत कबूल करेगा हम उसको ऐसी मौत देंगे इबरत के लिए। और जो है वहां ले जाने के बाद उन्होंने अपने तीर मारने चाहे, जो बच्चे ने बतलाया था, बच्चे ने तरका से तीर नहीं मारा अपने, तो एक भी तीर जो है बच्चे के नहीं लगा। उसने कहा कि मेरी शर्त यही है कि मैं मारने की कि आप जो है मेरे तरका से तीर लें और जो है मेरे रब का नाम लेकर तीर मारे तो मैं मरूंगा। चलो ठीक है, नहीं मार लेते, हमें तो आपको क्या है मार नहीं है। तो उन्होंने उस बच्चे के तरकश का तीर लिया, उस पर जो है अल्लाह का नाम लिया, उसको चलाया, वो तीर उसके लग गया। जो मजमा था जो मैदान के अंदर जो है इसका तमाशा देखने आया था, एक तरह का मैच देखने आया था, वो सब के सब मुसलमान हो गए। भाई मरा किस तरह वो? उन्होंने कहा कि अगर इसके तरकश से तीर निकालेंगे, अगर ये नाहक होता तो अपने तरीके से मार लेते, क्योंकि सारा पीछे का वाकया वो भी उनके सामने आ गया। पहले ही मारना चाहा, नहीं मरा, अब भी जो मरा है वो भी
اس کے رب کے نام سے جو تیر مارا اس وجہ سے مارا ہے، تو سارا کا سارا جو مجمع تھا سب مسلمان ہو گیا. اور بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا کیونکہ اب ناک کی بات آ گئی ہے نا. اس نے کہا کہ اب میں سب کو ہی جو ہے قتل کروں گا، یا تو سارے یہودی بن جائیں پھر دوبارہ، ورنہ اگر آپ عیسائیت پہ رہیں گے تو میں جو ہے سب کو ہی قتل کر دوں گا.